Assalamualaikum. How are you all? Today our topic is for the 3 class grammar book, English subject. Okay. Today we learn in the chapter on the book page number 6. Open your grammar book page number 6. This topic, the chapter name is about the kind of sentences. As you know that sentence is a group of words. Sentence is a group of words that make a complete sense. As you know that the sentence has the 3 types. Sentence की 3 types हैं. Affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Basically, sentence has 3 types, but it has also one more, imperative sentence. Now I am telling you about the affirmative sentence. What does it mean? Affirmative sentences are those sentences that have the positive statement. Means that positive affirmative statement से क्या मुराद है? जिसमें किसी चीज की तारीफ की जाए, किसी को फ्रेज किया जाए कि वो अच्छी लग रही है, she is looking good, she is pretty and all that. किसी की तारीफ करना वो आता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में. एंड नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? नेगेटिव स्टेटमेंट इन दिस सेंटेंसेस दैट हैव द वर्ड नॉट. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट का वर्ड आ जाता है उसे कहा जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट. एज यू नो, she is not well. As you can see, not. She is not well कि वो ठीक नहीं है. It means not is a negative statement. Now, if we talk about the interrogative sentence, interrogative sentence are those sentences that something asked, जिसमें आपसे कुछ पूछा जा रहा हो उसे कहा जाता है interrogative. आपको पता है जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसके लिए ये वाला साइन को यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क को. मींस दैट उसमें कुछ पूछा जा रहा है आपसे. लाइक इज शी योर सिस्टर, कि क्या वो आपकी सिस्टर है. एंड नेक्स्ट वन इज अबाउट द इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस इन विच समवन गिव यू एन एडवाइस, कमांड एंड अ रिक्वेस्ट. कि कोई भी आपको कोई एडवाइस करता है, कमांड कोई हुक्म देता है, या रिक्वेस्ट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ये काम कर दो. ठीक है, वो आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में. एज आई टोल्ड यू, कितने काइंड ऑफ सेंटेंसेस? हाउ मेनी काइंड्स? लाइक 3 मेन काइंड्स, like affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Affirmative sentences are always positive statement. Negative sentences always negative, not word used. Interrogative sentence always use question mark. And imperative sentences are those sentences in which advice, command and request are given to you. As you can see in the example, she looks pretty is a positive statement. Means a praise, उसकी तारीफ की गई है. She looks pretty. Next one, she is not well. Not is the word not for the negative statement. Is she your sister? In the last, question mark is given there. So that's why we say that it's a negative it's a question mark statement. It's an interrogative sentence. And in the imperative sentence, advice, she gives you advice, कि वो आपको एक advice दे रही है. ठीक है, वो आपका imperative sentence में आ जाएगा. Okay, now look at the book page number 6. All the definitions are given there. First one, there are 4 kinds of sentences on the basis of their meaning. कि उनके meaning के according kinds की sentences की कितनी kinds हैं? 4 kinds हैं. Number 1 is about affirmative. Second one, negative sentence. Third one, interrogative sentence. And fourth one is about imperative sentence. As I told you, affirmative sentence always positive statement, negative statement always use the word not, interrogative sentences always use the word question mark, and imperative sentences always being a advice, command and a request. Now again the definition reading I am going here. If a statement, अगर कोई statement is positive, it is called affirmative sentence. Like she is an intelligent girl, ये उसकी क्या है? एक डेफिनेशन है. She looks pretty, कि वो pretty लग रही है. You won the prize, आपने प्राइज को won कर लिया. It means that they are talking about the positive sense. Means that they are praising, उसमें तारीफ की जा रही है उनकी. Next है negative sentence. क्या होते हैं? If a statement is negative, it is called negative sentence. Like she is not well, इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट आता है. ठीक है, she is not well, वो ठीक नहीं है. The girls are not talking, गर्ल्स बातें नहीं कर रही हैं, टॉकिंग नहीं कर रही हैं.
ही इज नॉट अ टॉल बॉय, कि वो एक टॉल बॉय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन मार्क को यूज किया जाता है। नेगेटिव में नॉट आएगा, नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा, और जब बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तीन पहचान होगी। अफर्मेटिव में पॉजिटिव साइन जिसमें कंप्लीट सेंस हो, नेगेटिव में नॉट आएगा, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा। पहचान होगी। नेक्स्ट अबाउट है हमारा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। वॉज ही कैचिंग फिश, कि क्या वो मछलियां पकड़ रहा है? इज शी योर सिस्टर, क्या वो आपकी सिस्टर है? डू दे ऑन अ बिग हाउस, क्या उसका एक बिग हाउस है? ठीक है, इसमें आज हमेशा आपसे कुछ पूछा जा रहा था, और जब आपसे कुछ भी आज किया जाता है तो उसके लिए क्या यूज होता है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट टू मेक सम प्रोहिबिशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस command, advice, request or make some prohibitions is called imperative sentence. Like for example, stand up, please help me, behave nicely, do not talk. As you can see here, there in these sentences they are given you advice, command and request. Stand up, ये क्या है आपके लिए? एक टीचर आपको एक कमांड देगी, टीचर का हुक्म है, ठीक है, कमांड है ये। प्लीज हेल्प मी, ये क्या है? रिक्वेस्ट है कि वो आपसे कह रहे कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बिहेव नाइसली, ये क्या होगा? बिहेव नाइसली कि अच्छे से बिहेव करो। ये आप किस में लोगे? एक्सप्रेसिंग में लोगे या कमांड में आएगा? कमांड में भी आ सकता है। ठीक है, एडवाइस भी हो सकती है ये। डू नॉट टॉक, बातें नहीं करो, ये एडवाइस नहीं होगी, ये आपके कमांड होगा। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। लाइक ईट फ्रूट, catch the ball, sit down. As you can see, eat is the first form of the verb, catch is the first form of the verb, and the sit is the first form of the verb. Now here is an exercise. Like sentences are given there, you have to identify कि वो negative हैं, affirmative हैं, interrogative हैं, कौन से sentences हैं, आपने उनके आगे write करना है। Ali is a good boy. It's a imperative sentence. It's a affirmative. Ali is a good boy is a affirmative sentence. Next one is stay away, imperative sentence. You have to write imperative. What is your name? क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शी इज नॉट रीडिंग, क्या वो रीड नहीं कर रही? नॉट आ गया तो इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। टेक एक्सरसाइज डेली, के डेली एक्सरसाइज करें, ये एडवाइस में भी आ सकता है, इंपेरेटिव भी होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे लिख देंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ राइट डाउन द टू अफर्मेटिव सेंटेंस एंड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि दो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को राइट करना है और टू आपने इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट पे आ जाएगा। लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट मैन, अली इज अ गुड बॉय। ओके, नाउ इंटरोगेटिव, are you crazy and was he asleep? As you can see, first form of the word is used in the interrogative sentence like crazy and sleep. This all about the chapter number 3. In this chapter, we learn about the four things like affirmative sentence, negative sentence, interrogative and imperative sentence. Affirmative sentence always being a positive statement. Negative sentence always word not is given there. Interrogative sentence always being a question mark, and an imperative sentence being an advice, command and a request is known as the imperative sentence. I hope you have got all the idea about these type of sentences like affirmative, negative, interrogative and imperative. In this chapter, this is all about these kinds. Next chapter is about the chapter number 4, which is about articles. First of all, I am going to tell you about what does it mean articles. Articles का मतलब क्या होता है? A, an and the are called articles. Articles are those words that have contained the three different words like a, like an and like the. यानी means that a, an and the
The combination of a and the make a complete word articles. Combination of a and the make a complete word articles. Now look at the first definition. A and the are called articles. Articles are used before noun. If we talk about noun, what does it mean? Noun का क्या मतलब होता है? The name of a place, person or thing is called noun. तो आर्टिकल्स में भी कहा जा रहा है कि नाउन से हमेशा पहले आर्टिकल आता है. आर्टिकल कितनी काइंड्स के? लाइक 3 काइंड्स के हैं. आ, एंड द. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द वर्ड आ. आ क्या है? आ जो वर्ड है, आर्टिकल आ है, वो उस वक्त यूज किया जाता है जब सेंटेंस में कॉन्सोनेंट वर्ड होता है. ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? आपको पता है 2 टाइप्स होती हैं वॉवल की. एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवल. वॉवल्स क्या होती हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं. ठीक है, और ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो बाकी लेटर्स होते हैं, रेस्ट ऑफ अदर्स होते हैं, वो लाइक बी, डी, एफ, जी, एच, जेड टाइप तक, तो वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वर्ड की बात कर रही हूँ, प्लांट. आप देख सकते हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ है प्लांट. अगर मैं इसमें बात करूं तो फर्स्ट वर्ड क्या है? पी है. अगर हम इसकी पहचान करें, वी टॉक अबाउट द वर्ड the combination between the comparison between the vowel and the consonant, the first word is p. So that's why we talk about that it's a consonant. तो हम क्या कहेंगे कि ये consonant है क्योंकि उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? p है. ठीक है, इसमें वॉवल वर्ड नहीं है. और अगर हम एक वर्ड ऑरेंज की बात करें, ORANGE ऑरेंज, तो हम देखेंगे इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? O है. और O हमारा क्या होता है? वॉवल होता है. और P हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है. ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है आर्टिकल के, आर्टिकल्स की पहचान की कि जहां पे वर्ड आ रहा होगा वहां पे आपने कॉन्सोनेंट यूज करना है. ठीक है, और जहां पे वर्ड एन आएगा वहां पे आपने वॉवल यूज करना है. वॉवल्स के लिए एन के लिए हमेशा क्या आता है? वॉवल वर्ड के लिए यूज किया जाता है. और जहां पर भी THE दा आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज किया जाता है. स्पेसिफिक थिंग्स मतलब स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, शॉप्स, रिवर्स, ये सब क्या होते हैं? द. ये सब क्या होती हैं? स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं. ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं? द. आर्टिकल्स कितनी काइंड्स के होते हैं? 3 काइंड्स के होते हैं. आ, एन और द. ठीक है, जहां पे भी कॉन्सोनेंट आ रहा है वहां पे आपको वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड लिखा नजर आ रहा है प्लांट. इसमें जो फर्स्ट वर्ड क्या था? प्लांट था, पी था. ठीक है, वो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो प्लांट के लिए आप इसके स्टार्ट में क्या लगा दोगे? आ, कि ये एक कॉन्सोनेंट है. ठीक है, उसके बाद जो एन होता है हमेशा वॉवल के लिए यूज किया जाता है. यानी आप एक वर्ड देख रहे हैं ऑरेंज. ठीक है, इसमें आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ड क्या है? ओ. आपको पता है ओ है, ओ वॉवल वर्ड है, तो इसलिए आपने इसके लिए यूज कर देना है एन. तो हम इसके लिए क्या लगा देते हैं? एन. हमें वॉवल से पता चल गया कि इसके स्टार्ट में ओ आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया. उसके बाद स्पेसिफिक थिंग यानी द किससे यूज करते हैं? कि कोई भी स्पेसिफिक थिंग को जिस सब लोग उसको उसी नेम से कॉल करते हैं, लाइक स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, ऑफिस है, वो सब क्या है? हमारी स्पेसिफिक थिंग्स हैं. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द, स्कूल है तो स्कूल के साथ हम क्या लगा देंगे? हमेशा द. द स्कूल इज सिचुएटेड इन दिस रिवर. ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. ओके, दोबारा से अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं टॉपिक को, articles are the combination of 3 letters like a, an and the. If we see a word begin with the consonant word, we use a. If we see the word begin with the letter vowel word, we use an. But if the word begin with the specific thing, we use the. If we talk about in easy language, अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम यूज करते हैं P. अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में वॉवल वर्ड आ रहा है तो हम यूज करते हैं एन. और अगर कोई चीज स्पेसिफिक थिंग है यानी सब उसको उसी नेम से कॉल करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं द. क्लियर कंसेप्ट अबाउट दिस? लाइक आर्टिकल आ, एन एंड द. We use the word a, an and the. Now come on the book page number 8. Now look at this definition. We use a before singular noun which begin with the consonant. For example, they are giving you some words like tomato, friend, tree, plant, bush and house.
As you can see, the first letter will be a consonant, so that's why they use the word a. यही आपको समझाया है कि अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आ, जो कि सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं. और नेक्स्ट देखें, we use an before singular noun which begin with the word sound, with the vowel sound. कि अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में वॉवल वर्ड आ गया तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं एन. ठीक है, लाइक एन एप्पल. एप्पल है, एप्पल में फर्स्ट वर्ड क्या है, ए है. ए हमारा क्या होता है, वॉवल, सो दैट्स व्हाई वी यूज एन. एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एक्स, एन ईगल, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम. We use the for the special names. We use the when we talk about specific things, कुछ specific things के बारे में बात की जा रही हो तो यूज करते हैं the का word. Like the Pakistan Times, the school, the Indus River, the library, the Holy Quran, and the news. Again, I am calling about if a word begin with a consonant, we use a. If the word begin with a vowel letter, we use an. If the word begin with a specific thing, we use the. Clear concept? A and the. Again recalling, consonant के लिए a, vowel के लिए an और specific thing के लिए the. इसी से relevant हमारी एक exercise है on the book page number 9, grammar book page number 9. First about the write a or an to fill the blanks. I read dash story book every night. You can see story book. They talk about story. Story S-T-O-R-Y story. उसका फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है, S है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, आ. हमने यही बात की कि अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके साथ हम लगा देंगे आ. अगर वॉवल आएगा तो उसके लिए लगा देंगे एन. नेक्स्ट देखें, एलिफेंट इज अ फ्रेंडली एनिमल. फ्रेंडली एफ है, मीन्स आ. नेक्स्ट देखें, आदि लाइक टू प्ले विद एन एरोप्लेन. एरोप्लेन आर है, सो दैट्स व्हाई वी यूज एन. वॉवल वर्ड आ गया चुके, इसलिए हमने लगा दिया एन. सिद्रा ईट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एवरी डे. स्लाइस है, सिंगुलर है, यही कहा है कि आर्टिकल में हमेशा सिंगुलर चीज के लिए यूज करते हैं. आर है तो इस स्लाइस है, कॉन्सोनेंट है, सो दैट्स व्हाई वी यूज आ. हसन कैन ड्राइव अ बाइसाइकिल. बी, बी इज अ कॉन्सोनेंट, सो दैट्स व्हाई वी यूज आ. Next, question number 2 is about Sana is in Mr. Amir's pet shop. Complete their conversation with a, an और the. यानी कि सना और आमिर पेट शॉप पर हैं, उनकी कन्वर्सेशन है जिसको आपने यूज ऑफ आ, एन और द के थ्रू कंप्लीट करना है. ये आपका टास्क है, आपने खुद भी कंप्लीट करना है, मैं भी करवा देती हूँ. आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क. सना, I want to buy a cat please. Amir, do you want a young kitten or an older kitten? I want the orange colored kitten. Amir, the orange colored kitten is in the cage is sold. And old man bought it. Sana, then can I have the black one in the cage over there? Amir, certainly. You have made a very good choice. It is an active kitten. Sana, thank you, Mr. Amir. Amir, you are welcome. This is a conversation between the Sana and Mr. Amir's pet shop. You have to complete this exercise as a task on the page number 9. As I told you about the articles a, an and the. कि कहाँ पर a का आर्टिकल यूज करते हैं, where we use an article and where we use the article. For the consonants we use a, for the vowels we use an, and for the specific things we use the. And the first and the most important thing, articles will be used where a singular word will be there. जहाँ पर एक singular word की बात की जाए वहाँ पर article को हमेशा यूज किया जाता है. And here is a task for you to homework complete learn grammar book page number 7 plus 9. For your own practice, I will make sure that you have complete the sentences and the sense about the articles and the sentences. Okay, now thank you so much. This is your homework task.